غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کو نکالنے کا معاملہ وفاقی حکومت کی جانب سے 31 اکتوبر کی ڈیڈ لائن۔ ملتان کینٹ ڈویژن میں 200 سے زائد غیر قانونی افغانی مقیم ہونے کا انکشاف ہے۔ آپ کو بتائیں، غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کو نکالنے کا معاملہ وفاقی حکومت کی جانب سے 31 اکتوبر کی ڈیڈ لائن۔ ملتان کینٹ ڈویژن میں 200 سے زائد غیر قانونی افغانی مقیم ہونے کا انکشاف۔ اس حوالے سے اے ایس پی کینٹ ڈویژن محمد طیب کا روحی سے گفتگو میں کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ پالیسی ہیں اور ایک نئی ڈائریکشن آئی ہوئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ جتنے بھی انلیگل یہاں پہ افغان امیگرینٹس ہیں ان کو یکم سے پہلے یہاں سے نکلنا چاہیے۔ وہ اگر والنٹیئرلی اپنے مرضی سے نکلیں گے، کوآپریٹ کریں گے اسٹیٹ کے ساتھ، تو ہم ان کے ساتھ بھی کوآپریٹ کریں گے اور ان کو نکالنے میں بھرپور کوشش کریں گے۔ اگر وہ یکم سے پہلے نہیں نکلتے تو ظاہر بات ہے پھر ایک مجبوری بن جاتی ہے اور پولیس اس معاملے کو دیکھنے کے لیے لیگل کارروائی کرے گی۔ جتنے بھی ہمارے پاس لیگل آپشنز ہیں ہم ان کو ڈیپورٹ کرنے کی جو لیگل پروسیجر ہیں وہ اپنائیں گے۔ دوسری اردو میں سردی آتے ہی لنڈا بازار کی رونقیں بحال ہو گئیں، لیکن مہنگائی نے پرانے جوتے بھی شہریوں کی پہنچ سے دور کر دیے۔ لنڈا بازار میں ہر چیز کے ریٹ دگنا ہو گئے۔ شفقت ملانہ کی رپورٹ میں دیکھیے۔ کوٹ ادو میں لنڈا بازار سج گیا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ موسمی پہناوے مجبوری ہیں۔ 200 سے 300 روپے میں ملنے والا جوتا 500 سے 800 روپے میں مل رہا ہے۔ آج کے دور میں غریب لوگوں کا ہی نہیں بلکہ امیر لوگوں کا بھی گزارا کرنا دشوار ہو چکا ہے۔ تو یہاں پہ اب جیسا کہ یہاں پہ پہلے یہاں پہ لنڈا آیا کرتا تھا اور غریب لوگ اس سے گزارا کر لیتے تھے، سستے داموں خرید لیتے تھے، لیکن آج یہاں یہ کنڈیشن ہے کہ غریب لوگوں کی پہنچ سے بھی یہاں کے جو ریٹ ہیں وہ پہنچ سے بھی دور ہو چکے ہیں۔ مہنگائی بہت زیادہ ہے، اس لیے ہم نئی جوتے نہیں خرید سکتے۔ لنڈے کے لیے لینی ہے، یہ بھی بہت مہنگے ہے۔ کوٹ ادو لنڈا بازار میں پرانے جوتوں کے سٹال پر رش ہے، لیکن شہری زیادہ قیمتوں سے پریشان ہیں۔ ابھی مہنگائی بہت ہو چکا ہے، لوگ یہ نہیں لے کے سکتا ہے، مہنگائی بہت آ گئی ہے۔ یہ بہت سستا لے رہا ہے، اب ہم نے مہنگا لیا ہے لیکن وارہ نہیں کرتا اس ریٹ پہ جو یہ ہم سے لیتا ہے، بہت تنگ کر رہا ہے لوگ، مہنگائی ہے بہت۔ دکانداروں کا کہنا تھا کہ لنڈے میں چیزوں کا ریٹ ڈالر کے حساب سے ہوتا ہے۔ ڈالر مہنگا ہونے سے چیزیں بھی مہنگی ہیں، لیکن گاہک یہ بات سننے کو تیار نہیں۔ مہنگائی کی وجہ سے کام آدھا رہ گیا۔ کیمرہ مین محمد اقبال کے ساتھ شفقت ملانہ، روہی، کوٹ ادو۔ موسم بدلتے ہی جنوبی پنجاب میں گیس کی غیر اعلانیہ بندش کا دورانیہ بڑھ گیا۔ مختلف علاقوں میں 18 گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ۔ ملتان کے شہریوں کے لیے کھانا تیار کرنا مشکل ہو گیا۔ شہری بازار سے مہنگے داموں کھانا خریدنے پر مجبور ہے۔ رانا بلال کی رپورٹ میں دیکھیے۔ ملتان میں سردی آتے ہی گیس غائب۔ مختلف علاقوں میں 18 گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری۔ شہری مہنگی ایل پی جی اور لکڑیاں خریدنے پر مجبور ہیں۔ کم پریشر اور لوڈ شیڈنگ کے باعث ناشتہ تیار کرنا مشکل ہو گیا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ بچے ناشتے کے بغیر اسکول جاتے ہیں۔ ہم صبح اٹھتے ہیں، ڈیلی یہی روٹین ہے، بڑی صبح گیس نہیں ہوتا، گھر والے اٹھتے ہیں ناشتہ کرنے کے لیے تو گیس نہیں ہوتی، بچے اسکول چلے جاتے ہیں بغیر ناشتہ کیے۔ ہم لوگ آپ کے سامنے اس ہوٹل پہ بیٹھے ہیں، مہنگے داموں ہر چیز مل رہی ہے۔ ملتانیوں کا مزید کہنا تھا کہ صبح اور شام کے اوقات میں تھوڑی دیر کے لیے گیس آتی ہے، لیکن پریشر نہ ہونے کی وجہ سے کھانا نہیں بن سکتا، جبکہ مہنگائی کے باعث بازار سے کھانا خریدنا بھی آسان نہیں۔ بات یہ ہے کہ ہمیں جب گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوگی تو ہمیں ظاہری بات ہے پھر باہر نکلنا پڑے گا، ٹھیک ہے، ہوٹل وغیرہ میں۔ تو بس مطالبہ یہی ہے کہ جتنی جلدی حالات بہتر ہو سکیں وہ ٹھیک ہے ہمارے لیے۔ شہریوں نے حکومت سے سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ مین کامران کے ساتھ رانا بلال، روہی، ملتان۔ دوسری جانب کوٹ ادو انتظامیہ کی نااہلی۔ شہر بھر کے واٹر فلٹریشن پلانٹ خراب۔ شہری صاف پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ رہی صحیح کثر صفائی ستھرائی کے ناقص صورتحال نے پوری کر دی۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ پانی کا معیار عام نل کے پانی سے بھی نیچے چلا گیا۔ شفقت ملانہ کی رپورٹ میں دیکھیے۔ کوٹ ادو انتظامیہ کی نااہلی کے باعث شہری مضر صحت پانی پینے پر مجبور۔ 2010 کے سیلاب کے بعد شہر بھر کے واٹر فلٹریشن پلانٹ مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے ناکارہ ہو گئے۔ پانی کا معیار عام نل کے پانی سے بھی نیچے چلا گیا۔ یہ جو لاکھوں روپے لگا کر شہر میں فلٹریشن پلانٹ لگائے گئے تھے یہ سارے ناکارہ ہو چکے ہیں، تو برائے مہربانی یہ ان کو دوبارہ بحال کیا جائے تاکہ شہری اس سے مستفید ہو سکے، جبکہ سادہ پانی کی جو ہے لیول وہ اس سے بہتر ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ فلٹریشن پلانٹس کی دیکھ بھال پر لاکھوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، لیکن پانی کے معیار پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی۔
मुख्तलिफ NGOs की जानिब से मुतादिद फिल्ट्रेशन प्लांट्स के पानी का मयार चेक किया गया जो आम घरेलू पानी से भी कम तर निकला। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स बेहतर बनाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ शफकत मौलाना, रोही, कोटद्दू। मुल्तान शहर में ट्रैफिक सिग्नल्स का बुरा हाल। अहम चौकों पर मौजूद सिग्नल फाल न होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। शहर में करोड़ों रुपए की लागत से सिग्नल्स लगाए गए मगर अभी तक फाल नहीं हो सके। तफसीलात के लिए देखते हैं हसन मलिक की रिपोर्ट में। मुल्तान शहर में ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम। करोड़ों रुपए की लागत से नस्ब ट्रैफिक सिग्नल्स ताहाल फ़ाल ना किए जा सके। चुंगी नंबर 9 और कचहरी चौक समेत शहर की दीगर अहम शाहराहों पर ट्रैफिक सिग्नल्स तो नस्ब कर दिए गए हैं मगर उनको अभी तक फ़ाल नहीं किया जा सका। सिग्नल फाल ना होने की वजह से यहाँ पे काफ़ी सारे रोड एक्सीडेंट हुए हैं। कई लोग अपनी जान की बाजी हार गए सिर्फ इस सिग्नल ना होने की वजह से, क्योंकि एक ट्रैफिक वार्डन इतने बड़े चौक को कैसे कवर करेगा। 6 रोड मिलते हैं, यूनिवर्सिटीज़ यहीं पे हैं। अगर किसी ने मतलब आउट ऑफ सिटी जाना है तो उसने भी यहीं से गुजर के जाना है। अगर किसी ने आना है फिर मेन मेट्रो स्टेशन है यहाँ पे। शहरियों का कहना था कि खानेवाल रोड शहर की अहम तरीन और मसरूफ तरीन शाहराह है। इस पर हमारे टैक्स से ट्रैफिक सिग्नल्स लगाए गए हैं मगर फाल न होने की वजह से आए रोज हादसात का होना मामूल बन गया है। पैदल चलने वालों को भी शदीद मुश्किलात पेश आती हैं। गाड़ी और बाइक्स वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, पैदल वालों को भी उतना ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पैदल भी बंदा यहाँ से नहीं गुजर। आप खुद ही देख सकते हैं कि कितना रश है। लोग रॉन्ग साइड से आ रहे हैं, जा रहे हैं। उन्होंने एक वार्डन को ठहरा दिया, सिग्नल बंद कर दिया। हमारे पैसे लगा दिए इन लोगों ने। मेरे ख्याल से ये तो जब से लग गए ये तो चले ही नहीं है। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि ट्रैफिक सिग्नल्स को जल्द फाल किया जाए ताकि शहर में ट्रैफिक मसाइल और हादसात में कमी आ सके। कैमरामैन हसीब अहमद के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। डेरा गाजी खान इंतजामिया की अदम दिलचस्पी। घंटा घर चौक की घड़ी टूट फूट का शिकार। घंटा घर चौक की खूबसूरती मांद पड़ने लगी। शहरियों ने कदीमी चौक की खूबसूरती बहाल करने के लिए नई घड़ी लगवाने का मुतालबा कर दिया। आशिर इशफाक की रिपोर्ट में देखिए। डेरा गाजी खान इंतजामिया की नाअहली घंटाघर चौक पर लगी घड़ी टूट फूट का शिकार हो गई। शहरियों का कहना था कि घड़ी की खस्ता हाली के बायस चौक की खूबसूरती मांद पड़ रही है। इससे कबल ये घड़ी लोगों को वक्त बताती थी। जब से ये लगी है चंद अरसे के बाद ये टूट गई थी घड़ी और ना इसकी मुरम्मत हुई है ना ही इसकी कोई देखभाल हो रही है। मट्टी चढ़ी पड़ी इसके ऊपर। तनख्वाह लेने वाले अब तो तनख्वाह ले रहे हैं, इसकी कोई सफाई नहीं है। बेहतर यही है कि वो इनकी देखभाल करें, इनकी अपना टूट फूट जो है वो सही करें ताकि लोग आने वाले खूबसूरती डीजी खान में खूबसूरती में इजाफा हो। शहरियों का कहना था कि घड़ी लगने के चंद दिन बाद ही खराब हो गई। अब तवज्जो न देने की वजह से टूट फूट का शिकार है। इंतजामिया घंटाघर चौक पर तवज्जो दे। चंद अरसा चली है, 2-4 माह के बाद दोबारा खराब हो गई है। कोई पुरसाने हाल नहीं है इसका। आप देख सकते हो कितना कचरा पड़ा हुआ है, गंदगी पड़ी हुई है इसके ऊपर। मेन चौक है। मेरे ख्याल में जब ये लगी है शायद वाली बात है 5-4 महीने चली हो, उसके बाद तो खराब ही पड़ी है। ये शीशे टूटे हैं। इसकी खूबसूरती हो जाए तो अच्छा है, इसकी जगह की और चीज़ बनी जाए। शहर का सेंटर है, ये अच्छा होगा, साफ सुथरे माहौल में हो जाएगा। ये मेन बाजार है, ये सदर बाजार है। शहरियों का कहना था कि कदीमी चौक की खूबसूरती बहाल करने के लिए फौरी तौर पर नई घड़ी लगवाई जाए। कैमरामैन मुश्तबा सरवर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद सियासत की हलचल। मुल्तान में डिविजनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी नून लीग साद कांजू की रोही से गुफ्तगू। कहते हैं कि इलेक्शन की तारीख के ऐलान का इंतजार है, तैयारियां शुरू कर चुके हैं। उनका और क्या कहना है जानते हैं जुनेद अनवर से। जी जुनेद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद लीगी जो रहनुमा है वो मुतहरिक दिखाई देते हैं। खासतौर पर इलेक्शन प्लानिंग जो है वो जारी है। इस वक्त डिविजनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साद खुर्शीद कांजू हमारे साथ मौजूद से बात करेंगे। साद साहब, क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद जो पार्टी जो है उसके अंदर तेजी आई है, खासतौर पर मुल्तान डिवीजन से एक बड़ा काफिला गया, उस वक्त से बताइए और साथ साथ बताइए इलेक्शन प्लानिंग अब क्या है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपने देखा कि मैंने जैसे पहले आपसे कहा था कि जैसे मोहम्मद नवाज शरीफ साहब यहाँ पे आएंगे पाकिस्तान की सियासत में एक तेज़ी आएगी और तब्दीली आएगी। इलेक्शन बिल्कुल सर पे है। जैसे हल्का बंदियाँ फाइनल हो जाएंगी और डेट अनाउंस होने वाली होगी, हर पार्टी अब अपने कैंडिडेट फाइनल करने के उसमें दौड़ में आ जाएगी। मुस्लिम लीग नून भी इस वक्त पूरे गौर व खौफ से अपनी जो कैंडिडेट्स हैं उनको फाइनल करने की काम शुरू कर दिया है और आप देखेंगे कुछ ही अरसे में 10-15 दिनों के अंदर चीज़ें और तेज़ हो जाएंगी और सियासत के अंदर अब बहुत तेज़ी आ जाएगी।
और आ चुकी है, और इलेक्शन मुहिम शुरू हो जाएगी। हर पार्टी अपना केस अपनी आवाम के सामने रखेगी, आवाम जिसको मुंतखब करेगी इंशाल्लाह वो पाकिस्तान की हुकूमत में आकर और पाकिस्तान के हालात को बेहतर करने की कोशिश करेगा। इस वक्त मुस्लिम लीग नून का जो टिकट है वो फेवरेट समझा जा रहा है, और ख़ासतौर पर वो लोग, एक स्पेस मौजूद है जो तहरीक इंसाफ का जिन्होंने खैरबाद कहा, उनके लिए नून लीग क्या पॉलिसी लगती है, क्या रखती है? बाज़ का पार्टी जैसे कहा गया कि उनको अकोमोडेट नहीं किया जाएगा, अब कुछ लोगों के राब्ते भी तेज हो रहे हैं। देखिए, कोई भी सियासी जमात हो, नून लीग हो या कोई और भी हो, कोशिश ये उनकी ये होती है कि जो विनिंग हॉर्सेस हों वो इलेक्शन के दरमियान उनको आना चाहिए, और ताकि उनकी सीट्स जो हैं वो मजबूत हो जाएं। लेकिन एक बुनियादी कारकुन होने की हैसियत से मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि पार्टी को उन लोगों को तरजीह देनी चाहिए जो पिछले 4-5 सालों के अंदर जिन्होंने मुश्किल वक्त गुजारा है, हर तरह के हालात गुजारने के साथ आज पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। पार्टी का अच्छा वक्त है, जो भी नून लीग का उम्मीदवार होगा उसके जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। इसलिए वो लोग जो सिर्फ इस बुनियाद पर आने चाहते हों कि जी हम पहले फलां पार्टी की तरफ से मुंतखब हुए थे, अब हमें मौका दिया जाए इस पार्टी में आने का, तो मेरे ख्याल में इसमें उनकी हौसला शिकनी करनी चाहिए, और नून लीग के वो लोग जो बुनियादी तौर पर उनके साथ खड़े हैं उनको अहमियत देनी चाहिए और उनको टिकट्स मिलने चाहिए। आज बिल्कुल मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साद खुर्शीद कांजू का कहना है कि कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद जो सियासी गहमा गहमी है उसके अंदर भी वो तेजी देखते हैं, और वो समझते हैं कि पार्टी को चाहिए कि अपने उन नजरियाती कारकुनान को आगे जाकर टिकट दे जिन्होंने पार्टी के साथ मुश्किल वक्त देखा। जी जुनैद अनवर, बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन में आगे बढ़े। आम इंतखाबात के लिए सियासी सरगर्मियां उरूज पर। बहावलपुर में लीगी रहनुमा जहीर चिंटर की रूही से गुफ्तगू। कहते हैं कि नवाज शरीफ के कामयाब जलसे ने साबित किया कि वो आज भी आवाम के दिलों में है। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। उनका मजीद क्या कहना है, जानते हैं महमूद जहीर से। जी महमूद, अपडेट कीजिएगा। जी, मुस्लिम लीग नून के कामयाब जलसे के बाद अब पोजीशन क्या होगी? क्या इलेक्शंस होंगे? क्या मुस्लिम लीग नून बरसरे इक़्तिदार आएगी या क्या हालात होंगे? इन मामलात के बारे में जानते हैं। बावलपुर से अभी लास्ट एमपीए थे जहीर चन्नर साहब, जो कि मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं। बताइएगा, एक तो जलसा कामयाब हो गया, दूसरा अब क्या देख रहे हैं, इलेक्शंस होंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो पूरी कौम को मुबारकबाद देते हैं कि भाई बड़ा कामयाब तरीन जलसा हुआ है, और कायद अवाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अपने सरजमीन पाकिस्तान पर उन्होंने कदम रखा, और इंशाल्लाह इलेक्शन होने चाहिए। जो भी इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस करेगी, हम तो अपनी पहले दिन से ही तैयारी में है, इंशाल्लाह ताला इलेक्शन बिल्कुल होने चाहिए। जी अच्छा, तो अगर इलेक्शन होते तो आप क्या समझ रहे हैं कि आपकी पार्टी बरसरे इक़्तिदार? इंशाल्लाह ताला जी, इंशाल्लाह ताला। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो पार्टी है PMLN, हम सब की जमात है, वो 24 करोड़ आवाम के लीडर हैं, वो अपने मुल्क के पाकिस्तान आ गए हैं, और इंशाल्लाह शेर धाड़ेगा इलेक्शन में। अच्छा, मुश्किल वक्त था, अच्छा वक्त था, बुरा वक्त था, आप ठहरे रहे नवाज शरीफ साहब के साथ, अब बाबा भी आपके ठहरे रहे, वो बड़े करीबी साथियों में से उनके, तो क्या कहेंगे? देखें, बात यह है कि जब आप अपने कदमों पर, अपने पैरों पर ठहरे रहें तो फिर अल्लाह ताला बड़ी मेहरबानी करता है। अल्लाह ताला फिर आपको सब्र और इस्तिकामत देता है। हमने अपोजिशन का दौर भी देखा, 4 साल मुश्किलात का सामना भी किया, लेकिन अपनी पार्टी से जो है वो बेवफाई नहीं की। जी, अभी आप सुन रहे थे जहीर चन्नर साहब को, जो कि अभी लास्ट रिसेंट जो है एमपीए थे बहावलपुर से, और बता रहे थे कि वफादारी हमने नवाज शरीफ से सीखी है और वफादारी नवाज शरीफ के साथ ही रहेगी। जल्द नवाज शरीफ इक़्तिदार में आएंगे, इलेक्शंस होंगे और एक बार फिर से वज़ीर आज़म बनेंगे। जी महमूद जहीर, बहुत शुक्रिया आपका। पुलिस लाइन मुल्तान में फ्रेंड्स ऑफ पुलिस यूथ इंटर्नशिप, स्कूल्स और कॉलेजेस के तलबा की बड़ी तादाद में शिरकत। CTO नराव नईम शाहिद समेत दीगर अफसरान ने लेक्चर दिया। ट्रैफिक कवानीन और उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए हिदायत। आपको बताएं, पुलिस लाइन मुल्तान में फ्रेंड्स ऑफ पुलिस यूथ इंटर्नशिप, मुल्तान में स्कूलों और कॉलेजेस के तलबा की बड़ी तादाद में शिरकत। CTO राव नईम शाहिद समेत दीगर अफसरान ने लेक्चर दिया। इंटर्नशिप का मकसद कम्युनिटी पुलिसिंग को फरोग देना है। ट्रैफिक कवानीन और उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए हिदायत। मुल्तान में मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड सेंटर की जानिब से नाबीना बच्चों के लिए मौसीकी क्लासेस। छुट्टी के रोज नाबीना बच्चे मौसीकी सीखने में मसरूफ। नाबीना बच्चों को मौसीकी क्लास में सुर और ताल का हसीन इम्तिजाज सिखाया जाता है। तफसीलात बता रही है अलिशबा आसिफ। जी बिल्कुल, सुर बिखेरती इस क्लास में ब्लाइंड बच्चे मौजूद हैं, जो जैसा कि आप खुद भी सुन सकते होंगे। बच्चे जो हैं निहायत ही खूबसूरत पोइम पढ़ रहे हैं, बाकायदा
ब्लाइंड बच्चों को, बसारत से महरूम जो बच्चे हैं उनको मौसीकी की क्लास का इनेकाद किया गया है, ताकि जनूबी पंजाब में जो भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं इन बच्चों को उसमें अच्छा ये परफॉर्म कर सकें, सब कर सकें। यहाँ पे मेरे साथ इनके टीचर मौजूद हैं, सबसे इनसे बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं क्या क्या इन्हें सिखाया जा रहा है और ये क्लास इन बच्चों के लिए कितनी ज़रूरी है। जी बताइएगा, यहाँ पे इनको क्या क्या सिखाया जा रहा है? जी, यहाँ पे इनको मौसीकी प्रॉपर सिखाई जाती है, जिसमें क्लासिकल, लाइट क्लासिकल और मिली नगमे, तराने और इंग्लिश पोइम्स, उर्दू पोइम्स, सब कुछ एक प्रॉपर तरीके से। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये उसको बड़ी अच्छी तरीके से समझ लेते हैं और नॉर्मल लोगों से ज़्यादा अच्छे तरीके से म्यूज़िक समझ पाते हैं और करते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो बच्चे मौजूद हैं बहुत ही शौक से म्यूज़िक सीख भी रहे हैं, उनके लिए ये मौसीकी की क्लास किसी नेमत से कम नहीं है। शुएब से बात करते हैं, जिसको वैसे भी गाने का बहुत शौक है। शुएब, क्या कहोगे, ये मौसीकी की जो क्लास है कितनी पसंद आ रही है और क्या क्या सीखा है? जी बिल्कुल जी, यहाँ पे जो है जब से म्यूज़िक क्लास शुरू हुई है, यहाँ पे हमें जो है हमारे सबसे पहले तो जो सुर में मिस्टेक्स थी वो ठीक कराई जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, और हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि उसको समझने के साथ साथ जो बताते हैं, जो हमारे उस्ताद बताते हैं उसको पिक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो है हमारे ताल जो हैं, हमारी जो रिदम है उसको ठीक कराया जा रहा है, ताकि हम किसी भी मुकाबले में जो है अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकें, जिसमें नगमे हो गए, उसके अलावा जो है आपके पाकिस्तानी मिली नगमे हो गए हमारे, फिर उसके बाद नातिया कलाम जो हैं इसके भी हमें जो है ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि अच्छे से परफॉर्म कर सकें और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। जी बिल्कुल, यहाँ पे जितने भी कंपटीशन होते हैं जनूबी पंजाब में, मुल्तान में, ये ब्लाइंड सेंटर के जो बच्चे हैं पार्टिसिपेट करते हैं। कोई भी डे आता है, तकरीब होती है, तो इनके सुर और ताल ठीक करवाने के लिए मौसीकी की क्लास का इनेकाद किया गया है। बच्चे जो हैं पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पे म्यूज़िक भी सीख रहे हैं और खासे खुश नज़र आ रहे हैं। जी अलिशबा, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।